So now I will begin this 12th chemistry. This is video lecture 15th. Okay. In the last lecture we studied about Van't Hoff factor, that is I. Today we will be studying about degree of dissociation of a weak electrolyte. We will study degree of dissociation of a weak electrolyte. Okay, of a weak electrolyte. It is represented by alpha. Okay, तो देखो, you know जो weak electrolyte होगी. What is an electrolyte? Any substance which is carrying plus and negative charges both, that is an electrolyte. For example, NaCl plus minus, NH4OH plus minus, H2O plus minus. So a substance और इलेक्ट्रोलाइट कैरीज बोथ चार्जेस. ओके, जब उसको तुम पानी में डालते हो और यू डिसॉल्व इन सम सॉल्यूशन, देन इट गिव इट साइंस. ओके, दिस NaCl is an electrolyte. When you will add it into water, it will give Na positive plus Cl negative ions. Okay, so that is electrolyte. Okay, some ions dissociate completely. Complete जितना है उतना दे देती है. Means reactant is 100 gram, तो 100 gram of reactant will dissociate. That are known as strong electrolytes. Okay, some ions electrolytes are weak electrolytes. Suppose electrolyte CH3COH, acetic acid, is a weak electrolyte, so it will not decompose completely. Suppose you have taken 100 gram of the acetic acid, dissolved it in the solution in the water, okay, or any solvent, then 100 gram of the acetic acid will give which ions? Acetic acid, for example, this is CH3COOH. Okay, so it will form CH3COO negative plus H positive. Okay, this is an electrolyte because carrying negative plus both charge. When we put it into the solvent, it will give negative ions plus positive ions both. Okay, but suppose we have 100 gram of acetic acid. Okay, so 100 gram of acetic acid should give 100 gram of acetate plus 100 gram of H positive ions. Okay, 100 gram of CH3COH should give 100 gram of this ions and 100 gram of this ions. If we obtain 100 gram of acetate and 100 gram of H positive ions, then we will think that dissociation is complete. But in case of weak electrolyte, they never dissociate completely. 100 gram, एक बार देख लो, इसका 1 मोल था. 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ने कितने मोल एसीटेट के प्रोड्यूस किए? 1 मोल इसका, 1 मोल इसका. तो अगर 100 ग्राम होगा तो 100 ग्राम ये प्रोड्यूस करेगा, 100 ग्राम ये प्रोड्यूस करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ एसीटेट आयन एंड 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन. मोल मतलब 1 है ना, ये 1 है. तो अगर 100 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम ये बनेगा और 100 ग्राम यही बनेगा. बट सम इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट डोंट डिसोशिएट कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करते हैं. ओके, तो हमें 100 ग्राम ही मिलेगा. इसका हमेशा मान लो 100 से कम ही मिलेगा. 90 ग्राम मिला, 90 ग्राम मिला. हमने लिया था 100 ग्राम, यहां पे हमें 90 ग्राम ही आ रहा है, 90 ग्राम ही आ रहा है. ओके, अब तुम ये मत सोचना कि 90 90 180 हो गया. इसका नेम देखो, यहां पे 1 मोल ऑफ CH3OH डिसोशिएट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एसीटेट आयन एंड 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस. सो 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड विल गिव 100 ग्राम ऑफ एसीटेट आयन एंड 100 ग्राम ऑफ H पॉजिटिव आयंस. ऐसे होता है. 100 + 100 200 नहीं करना है. गेटिंग द पॉइंट? 200 करना है. ऐसा नहीं सोचना कि यहां पे 100 लिया था, वहां पे 200 हो गया. वो वाला नियम नहीं है, ये वाला नियम है. 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड विल गिव 1 मोल ऑफ एसीटेट आयन एंड 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन. सो 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड विल गिव 100 ग्राम ऑफ एसीटेट आयन एंड 100 ग्राम ऑफ this H पॉजिटिव आयन. ओके, सो यहां पे ये 100 मिल जाता है, मतलब इट हैज डिसोशिएटेड कंप्लीटली. इनटू आयंस. बट 100 नहीं मिल रहा है, मतलब इट हैज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड. So the electrolyte which don't completely dissociate are known as weak electrolytes. Okay, इनमें रिएक्शन डबल साइड चलती है. जितना ये डिसोशिएट होकर आयंस बनाते हैं, उतना ही आयंस मिलकर फिर से ये बना देती हैं, रिएक्टर बना देती हैं. जितना प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट मिलके फिर वापस में वो बनना शुरू कर देता है. तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा. ये आयंस बना रहा है, आयंस मिलके फिर से इसको बना रही है. तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड these ions are never completely dissociated. This is the example of one of those ions, and these ions are known as, or these electrolytes are known as weak electrolytes. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट सकती है? We will find out the degree of dissociation of a weak electrolyte. Okay, तो ये है. तो जैसे यही वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने, ठीक है, यही वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है. सपोज इसके 100 थे. टाइम इज इक्वल टू 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी, तो इसके मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे.
तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ये बना नहीं है, तो उसका 0 होगा और इसका भी होगा 0 होगा। ठीक है, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम इज इक्वल टू 0 का मतलब अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये 100 था और ये 0 होगा, ये 0 होगा। एट टाइम इज इक्वल टू t, मतलब कोई टाइम रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। मान लो इसमें से 100 में से 50 डिसोसिएट हो गए, क्योंकि 100 में से 100 तो डिसोसिएट होंगे नहीं, मान लो 100 में से 60 डिसोसिएट हो गए। ठीक है, 60 डिसोसिएट हो गए, जितने डिसोसिएट हुए उसको बोलते हैं अल्फा, उसको तो बोलते हैं अल्फा, जितने निकले हैं, जितने डिसोसिएट हो गए दैट इज नोन एज अल्फा। ओके, 60 डिसोसिएट हो गए और यहां कितने बनेंगे, 60 ये बन जाएगा, 60 ये बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर इसका एक, इसके 10, ये 10 बनाएंगे, ये 10 बनाएंगे, तो इसके अभी तक डिसोसिएट कितने हुए, 60 डिसोसिएट हुए हैं, 100 डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर 100 डिसोसिएट होता तो यहाँ पे 100 बन जाता, 60 निकले, 60 डिसोसिएट हुए, वही 60 यहां बना देंगे, 60 इधर बना देंगे, बन गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है टोटल मॉलिक्यूल्स कितने इसके पास, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे, 100 थे। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टोटल मॉलिक्यूल्स के पास 100 थे, उसमें से डिसोसिएट कितने हो गए, 60 डिसोसिएट हो गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया इसका, 6/10, और यू कैन से 3/5 और डिवाइड करोगे तो 0.6, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू होगी 0.6। अल्फा समझ गए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डिसोसिएटेड कितने हैं, 60 है, टोटल कितने थे, 100 था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी, 0.6। दिस इज क्लियर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.6। ओके, अब इसका देखो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, हमारे हिसाब से 100 निकलना चाहिए था, तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, हमारे हिसाब से 100 था ना, तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी। अब आई की बात करता हूं, अल्फा की बात होगी, अब आई की बात करता हूं। अब अल्फा तो हो गया 60 डिवाइड बाय 100, अब मैं बात करता हूं आई की। तो आई कैसे आएगा, थ्योरेटिकल हमारे हिसाब से 100 मॉलिक्यूल डाले थे, पर आगे जाके डिसोसिएट हो गया ये, तो 100 की जगह कितने मिले, 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 ये आ गए, और 100 माइनस 40, 60, इसमें से कितने बचे हैं, 40 इसमें से बचे हैं। ये भी तो सॉल्यूशन में पड़े होंगे, ये भी तो सॉल्यूशन में पड़े होंगे, 60 तो दोनों डिसोसिएट हो गए, बाकी 100 तो बच गया, 100 में से 40 तो बच गए। सो हमारे पास 60 प्लस 40, तो हमारे पास ये आ गई ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हमारे हिसाब से मॉलिक्यूल कितने मिलने चाहिए थे, कितने मिलने चाहिए थे, 100 मॉलिक्यूल मिलने चाहिए थे इसका, बट आगे चल के इसके से 60 डिसोसिएट हो गए, 60 ये बन गया, 60 ये बन गया, 120 और 40 ये बच गया, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आ गई, 160। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, 160, 160 कहते 60 ये बने, 60 ये बने और 40 ये बच गया, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आएगी, 160 आ गई। तो उसकी आई की वैल्यू क्या आएगी, आई मींस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल, तो कितनी आ जाएगी, 160 डिवाइड बाय 100, तो 1.6 इसके लिए क्या आ गया, आई आ गया। सो दिस इज आई एंड दैट इज अल्फा। आई मींस टोटल ऑब्जर्व कितने बने और इसके कितने बचे, ठीक है, डिवाइड बाय हमने लिए कितने थे, दैट इज आई, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, और क्या नाम उसका, व्हाट यू से, आई फॉरगॉट, हाँ, एंड अल्फा मींस कितने डिसोसिएट हुए, 60, कितने लिए थे, डिवाइड बाय 100। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई एंड अल्फा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई एंड अल्फा। नाउ वी विल बी स्टडीइंग द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, अल्फा और आई के बीच में हम रिलेशन समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम जनरल केस लेंगे, जनरल केस लेंगे, मान लो कि हमारे पास ए एन थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ए एन थे, और उन्होंने कितना बना दिया, एन ने बना दिया। ये समझते बात को, ए एन और एन में क्या फर्क है, मैं तुम्हें मोटा मोटा समझाता हूं, ए एन और एन में क्या फर्क है। जैसे H2 है, H2 का मतलब है इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। अब H2 किस में बदल गया, 2H में बदल गया, इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड टूट गया, अब H अलग है और H अलग है, देयर इज नो बॉन्ड। जब पांव में लगा तो उसका मतलब बॉन्ड है, तो ये एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब कितने ये, इसने 2 बना दिए, एक ने क्या बना दिए, 2 बना दिए, ये एक था, इसने n बना दिए, n कुछ भी सकता है, 1 2 3 4, यहां पे अगर 4 होते तो 4 मॉलिक्यूल ए के बन जाते, यहां पे 10 होते तो 10 मॉलिक्यूल ए के बन जाते, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन, ए एन हैज डिसोसिएटेड इनटू दिस, ओके। एट टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0, ये मान लिया हमने, इसके 1 मोल था, तो इसका कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम इज इक्वल टू 0 है। अब टाइम हमने ले लिया t, टाइम हमने t ले लिया, मान लो दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सिंबल बताता है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 में से 1 तो डिसोसिएट नहीं होंगे, मान लो 1 में से कुछ डिसोसिएट हो गया, जैसे कोई भी डिसोसिएट हो गया 1 में से, तो हम इसको क्या लिखते हैं, डिसोसिएट उनको हम क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं। दिस इज अ जनरल केस, जितने भी डिसोसिएट होते हैं ये देखो उसको हम अल्फा लिखते हैं।
तो मान लो हमने 1 में से अल्फा डिसोशिएट हो गए, 1 में से अल्फा डिसोशिएट हो गए, तो यहाँ पे n नंबर था, तो यहाँ पे कितने बन गए, n अल्फा बन गए, यहाँ पे कितने बन गए, n अल्फा बन गए। कैसे बन गए n अल्फा, अल्फा डिसोशिएट हुए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 होते तो 4 अल्फा बनते, यहाँ पे मान लो n 5 होता तो 5 अल्फा बनते, यहाँ पे n 6 होता तो 6 अल्फा बनते, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ नहीं है तो n अल्फा, 1 2 3 4 कुछ बचता है, यहाँ पे 4 होते तो 4 अल्फा, 5 होते 5 अल्फा, यहाँ पे n है तो n अल्फा बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए देखो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आ गई 1 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज observed value and that is theoretical value. Okay, this is observed value and that is theoretical value. Observed value and theoretical value. Okay, so what will happen now, this is observed value and theoretical value. So अब हम निकालेंगे इसका क्या, this what do you say, Van Hoff factor. Van Hoff factor का मतलब क्या, observed value कितनी है 1 minus alpha plus n alpha, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। ये आगे आएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, थ्योरेटिकल वैल्यू 1, ऐसे लिख दिया। अब देखो i किसके बराबर हो गया, i विल बी इक्वल टू 1 को साइड ले आओ, इस 1 को 1 i माइनस 1 ये साइड है इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ऐसे आ गया, ठीक है। i माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा, मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, i माइनस 1 इज n अल्फा माइनस अल्फा, i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लिया n माइनस 1, अल्फा कॉमन ले लिया n माइनस 1 आ गया, अल्फा कॉमन ले लिया तो कितना आ गया n माइनस 1, अल्फा कॉमन ले लिया तो कितना आ गया n माइनस 1। यहां तक क्लियर आ गया, i माइनस 1 इस तरह आ गया तो माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 तो है नहीं, है कि मतलब है, ठीक है। वहां पे मैंने n अल्फा माइनस अल्फा कर लिया, अल्फा को कॉमन ले लिया, n माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब i माइनस 1 इज इक्वल टू, i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1, अल्फा n माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी i माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना ये, तो इसका रिलेशन आ गया ना वेन टॉफ फैक्टर के साथ, ये इसको और सिंपलीफाइड करना है तो यू कैन राइट इट 1 माइनस i डिवाइड बाय 1 माइनस n, you can write it like this also, you can write it like this also. So this is the relation between degree of dissociation and Van Hoff factor. Got it?